So I welcome everyone to this very exciting episode of Read with a Teacher. And with me this time, we have our celebrated teacher, friend, colleague, a Fulbright distinguished teacher, fellow at Indiana University this time, Neeru Lohia ma'am. And it's really a great pleasure, Neeru ma'am, to have you at this program. I was thinking for a long time, in fact, and somehow keeping in mind your extremely busy schedule over there, I was not able to find time. But ultimately, Chandanji somehow tried to, coordinate with you and find time. So it's really a great pleasure to have you here. And for many of our friends may be aware, but I would like to repeat it again that there are many, unique things that is related to with you and with your award. And I was just thinking before coming to this episode today that perhaps in this country you are the only, Fulbright sisters, Neeru Lohia and Kadambari Lohia. So that's the uniqueness. Both the sisters are the state teacher. Wow, wow, wow. Yeah. Yeah. And so can the audience see the Fulbright sister Kadambari ma'am? Sometimes. I was not informed that I have to keep my video on. Okay. You should do it. मतलब खूबसूरत महिलाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप. Okay. डरा दें औरों को. Okay. वैसे ना we have a meeting, ये सबके लिए मैं सबको बता रही हूँ for all the participants. Right. We have a meeting tomorrow with our respected D sir और मुझे लग रहा है हमारी इस वाली Zoom में गौरव भी हैं. तो गौरव also will be there. और मेरे को एक टॉपिक कभी शाम को मैसेज किया गया है about Fulbright. मैं सोच रही थी कि Fulbright के बारे में जब डायरेक्टर से पूछेंगे तो क्या बताऊंगी. एक यही बता दूंगी कि जी इसके बाद खूबसूरत बहुत हो जाते हैं. नीरू लोहिया को देख लीजिए. Okay. Yeah, absolutely. So and one more thing that I would like to say that me and Neeru ma'am also shares a lot of things in common, and like we both are from the same school. So like for many of the friends who are new, that may be interesting information, and perhaps this could be the only school in India, this one school having two Fulbrighter, right? So not only the Fulbright sister, but also same school and having two Fulbrighter. So welcome, Neeru ma'am. I won't take much time today, and I think everyone is really excited to listen. We can say, Murari, fully bright sisters and fully bright colleagues. Yeah, exactly. So I mean, so like people would be really excited to listen from someone who is, otherwise very close, but this time from Saath Samandar Par. So we are excited to hear from you. Neeru ma'am, welcome to this. Chandanji will keep coming with us. He's traveling at this point of time. So Chandanji, I'm here already. Yeah, okay, you are already here. That's great. And I also welcome all the friends who are here and those who are watching, online. So we start with this, and I welcome once again Neeru ma'am and all the participants to this conversation, Read with a Teacher. So Neeru ma'am, before coming to talk about the books and the kind of questions that I asked, first of all, I would like to know, which is of a greater interest for all of us, that where you are, what are you doing there? For some of us, we know, but actually it would be really interesting to know that how you are experiencing your life over there. I was thinking that, yes, Read with a Teacher, you are, joining this program from Indiana University, but one has to read a lot of book to reach to Indiana University. So it's connected, So like, share something with us that how the life is over there, what your experience is, being at Indiana University, at one hand, a government school teacher, and on the other hand, a Fulbright scholar at Indiana University. So how this feeling and experience is? Thank you, Murari. नमस्कार सभी साथियों को जिन्होंने टाइम निकाला और रीड विद द टीचर ज्वाइन किया. जैसा मुरारी ने इंट्रोड्यूस किया मुझे, मेरा नाम नीरू लोहिया है. मैं आरके पुरम सेक्टर 7 स्कूल के अंदर एक इंग्लिश टीजीटी हूं. मुझे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम करते हुए 24 साल हो गए हैं. थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स एक जो चीज कॉन्स्टेंटली
जिसने मुझे मोटिवेट किया वो था अपने लर्नर्स के साथ में कनेक्टेड रहना। किस तरीके से आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग को अडेप्ट करें अपने लर्नर्स के लिए, पूरे सिस्टम के साथ में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारी गाइडलाइंस फॉलो करना है, लेकिन जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है हमारा, उसको सेंटर में रखना है। और मुझे लगता है केवल एक यही चीज है जिसने मुझे अलग अलग लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं यहाँ हूं। क्योंकि ये पूरी जर्नी में अगर मैं इफ आई लुक बैक टू द इयर्स, मुझे लगता है हर एक साल में कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ मेरे पर्सनालिटी में, मेरे टीचिंग में। जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज करती थी या कभी नहीं भी करती थी, वो इट वाज नॉट अ लीप, इट वाज अ स्मॉल स्टेप, जिसने मुझे आज यहाँ पर लाकर इस पोजीशन पे मैं खड़ी हूं कि मैं आज इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक फुलब्राइट फेलो के रूप में उपस्थित हूं और आप सब लोगों के साथ में जुड़ी हूं एक बुक के बारे में बातचीत करने के लिए। एंड आप ये भी कह रही हैं कि जो बुक पढ़ते रहेंगे they might have the opportunity to be there, right? Yes. So this Yes. is the indirect benefit of keep reading the book and Yes. occasionally being at the read with a teacher also. Yes, Yeah. definitely. तो And थोड़ा सा हमें, हाँ, आप कुछ कह रही थी वो कहिए और हमें थोड़ा सा बताइए इंडियाना यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपने पढ़ा वहाँ पे, कुछ थोड़ा सा समय लेकर के, एंड देन वील गेट बैक टू आवर बुक। Yeah, sure. तो इंडियाना यूनिवर्सिटी एक मतलब बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। इट इज अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द यूएस, और यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर हैं काफी सारे। एंड ऑल द प्रोफेसर्स जो इधर हैं, they are more into the pedagogical aspects of teaching and learning. तो यहाँ पर मुझे, जब मैं यहाँ पर पहुंची, it was quite overwhelming for me, क्योंकि जिस तरीके का टीचिंग लर्निंग और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम अपने कंट्री में देखते हैं, उससे ये एक टोटली डिफरेंट वाली चीज है। द पीपल हियर आर मच मोर प्रोफेशनल। पर्सनल कनेक्ट एस्टेब्लिश होते होते बहुत टाइम लग जाता है, बट दे आर वेलकमिंग। जैसे हम अपने लर्नर्स के लिए बिल्कुल एक पेरेंट के जैसे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। द टीचर्स विल केटर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली, लेकिन वो जो पर्सनल वाली चीज होती है, the teachers know everything about the student। हम लोगों से हो सकता है ज्यादा पता हो, लेकिन वो सारा एक रिकॉर्डेड प्रोसेस है। जो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट है वो इंडिया में ज्यादा है, वो यूएस में एकदम से इतना मुझे महसूस नहीं हुआ। हो सकता है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स 2 साल 4 साल 10 साल एक साथ हों, मे बी उन लोगों के अंदर ये इमोशनल कनेक्ट ज्यादा एस्टेब्लिश हो गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम विद इन 6 months बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ घुल मिल जाते हैं, उसके फैमिली के बारे में जानते हैं, उसके एक एक छोटी छोटी चीज से हम वाकिफ होते हैं। वो इधर मुझे नहीं नजर में आई इतनी। ये सारी चीजें पता है टीचर को, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, ये सब बातें उसका एक जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर एज एविडेंस के तौर पे इकट्ठी की हुई हैं। बट स्टिल देयर इज एक एज जो मुझे लगता है हम इंडियन टीचर्स के अंदर है, टू बी एबल टू फॉर्म दोज मदरली एंड फादरली कनेक्शंस, वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। तो आई थिंक ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, अब ऑलमोस्ट आपका 4 महीने वहां होने वाला है, आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद पार्कर पामर ने ये किताब भी लिखी है, जहाँ पे वो बहुत इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट और कैसे हम करें। सो बेसिकली उस पे बहुत फोकस है, तो जो मिसिंग है वही वो अपनी किताब में बहुत बात भी कर रहे हैं, राइट? वही देख रही हूँ मैं अपनी बुक के अंदर
कि जब टीचर कनेक्ट कर पाता है स्टूडेंट से तो टीचिंग एंड लर्निंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। राइट, सिर्फ एक वही चीज है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रेटजीज, द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड, किस तरीके से पढ़ाया, कितना टेक्नोलॉजिकल एड्स यूज किया पढ़ाने के लिए, ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। द कनेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, दैट मैटर्स मोस्ट। और हमने इससे रिलेटेड एक मिस रीटा पियर्सन का वीडियो भी देखा था कि जब तक वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न फ्रॉम दोस टीचर्स। एब्सोल्युटली। So first and foremost thing is that the connection should be there. राइट। और बार बार हम अपने जितने भी TDC प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आर्ट मीटिंग्स हैं, जब भी हम स्कूल्स के अंदर बात करते हैं, वर्कशॉप्स के अंदर बात करते हैं, सभी के अंदर हम इस कनेक्शन को, ये जो कनेक्ट एस्टेब्लिश करना है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और वही चीज इस बुक के अंदर भी निकल कर आई। आई थिंक इसीलिए वो लिखते हैं, आई मीन इस किताब में कि what we teach is less important but who we are is more important। नहीं, और उसी से वो कनेक्ट एस्टेब्लिश होते हैं। राइट राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक कि आपके पास 4 महीने में इतनी सारी कहानियां, इतने सारे फोटोग्राफ्स, इतने सारे एनेक्डोट्स हम सबके लिए शेयर कर, हम सबके साथ शेयर करने के लिए होगा। सो जब आप आती हैं वापस, विल हैव अ full day session basically, live interaction with all of us। रिमेम्बर मुरारी, जब मैं आ रही थी, यू सेड कि क्या आप तैयार हैं 3-4 हजार फोटो खींचने के लिए और खिंचवाने के लिए? आई कुडंट बिलीव इट दैट डे। आई सेड नहीं, मैं इतनी नहीं खिंचवाऊंगी, इट इज नॉट। बट हियर विद द प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर इन, यू कैन नॉट हेल्प इट। आप इतनी जगह जा रहे हैं, इतने नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। यहाँ मेरे साथ 10 और कंट्रीज के फेलोज हैं, और हर एक फेलो की जो इंडिविजुअलिटी है वो अलग ही रूप में हमारे सामने आती है। हाउ डू पीपल विद डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, विद डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशंस? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है देखने के लिए। चाहे वो एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, एक बोर्ड गेम खेलना, How do people respond in those situations? Right. तो ये मतलब जब हम एडल्ट लर्नर्स के साथ डील कर रहे हैं या आपस में कॉलीग्स होते हैं, हम एक कुछ सिमिलैरिटीज जो हैं हमारे पास होती हैं। हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जब आप अलग कंट्री, अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड्स के साथ में हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, अब जब आपने जब ये चर्चा किया तो आई रिमेम्बर, हो सकता है ये मेरा बायस भी हो, कि जब आप ग्रुप में ऐसे डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों को किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करते हुए देखते हैं, तो उस वक्त इंडियन को बड़ा इंटेलिजेंट होने का एहसास होता रहता है। आई मीन दिस कुड बी माय बायस, राइट, बट दिस इज हाउ आई हैव फेल्ट व्हेन लाइक मुझे ऐसा लगा दैट वी guard ourselves. It is not about the intelligence। और वो यहाँ जो दूसरे कंट्रीज के फेलोज हैं, some of them are more open in accepting their shortcomings। right। और जब हम अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, या हम किसी बाहर के देश के साथ में बात कर रहे हैं, हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और गार्ड करने लगते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, और हम एज पर्सन कैसे हैं। राइट। इट इज लाइक दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग टू प्रूव। ओके, ज्यादा कॉन्शियसनेस रहता है। यस, और हम ये भूल जाते हैं कि जब हम इस पोजीशन पर हैं, चाहे वो एज अ टीचर ही क्यों ना हो अपनी क्लासरूम के अंदर, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। राइट। वी आर देयर, एब्सोल्युटली, देयर वी वर सपोज्ड टू बी। एब्सोल्युटली। तो अगर वो वाली चीज हम याद रखें और थोड़ी सी ओपननेस रखें, विदाउट शील्डिंग आवरसेल्व्स, विदाउट गार्डिंग आवरसेल्व्स, विदाउट पुटिंग एक बिल्कुल एक वो जो हम अपने सामने एक स्क्रीन खड़ी कर लेते हैं, उसके बिना अगर हम रहें तो ज्यादा ओपन रह पाएंगे और स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे। ट्रू। आई थिंक आप, हालांकि आपके जो वहाँ पे कलीग्स हैं अलग अलग कंट्रीज से, दे हैव कम टू सम ऑफ अदर प्रोग्राम्स दैट वी डू,
लेकिन यहाँ पे भी एक बार अगर आप क्विकली उन कंट्रीज का नाम मेंशन कर दें जहाँ से आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सो जो 10 कंट्रीज हैं वो हैं ब्राजील, वहां के 2 फेलोज हैं। देन ग्रीस, एक फेलो है ग्रीस से। फिनलैंड, वहां की एक फेलो है। मोरक्को 2 हैं। फिलीपींस से 3 हैं। युगांडा से 2 हैं एंड मेक्सिको से 1 है। ओके, These are the countries, और एक मेरे साथ इंडिया से भी हैं। राइट राइट। तो इन अलग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट से हैं, ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दें, राइट? जी, तो दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम इसके बारे में तो आपसे लगातार जानते रहेंगे, पूछते रहेंगे जैसे जैसे ही आप नेक्स्ट आती हैं। अब हम थोड़ा सा किताब के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वी लाइक टू नो मोर अबाउट इट। और आपसे जो पहले बातचीत हुई, आपने बहुत अलग तरीके से रीड विद ए टीचर के लिए एक तैयारी की है, जो जो लगता है दैट इज सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपके पास पीपीटी है जो आप शायद शेयर करेंगी और हम लोगों के साथ उस किताब के बारे में बात करेंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम। चंदन जी, आप जब भी चाहें तो टू कम इन, जब भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपके लोकेशंस के बारे में हमें बहुत ज्यादा अभी मैं कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसमें रहूंगा कि नीरू मैम जो है वो कंटिन्यू रहे। इट्स गोइंग वंडरफुल, सो डेफिनेटली फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके, सो आई विल स्टार्ट माय स्क्रीन शेयर। और जितने उपस्थित साथी हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पूरी शेयरिंग के दौरान कुछ आपका मन से कुछ शेयर करने का, कुछ बातचीत करने का बीच में, तो प्लीज रेज योर हैंड, या फिर आप अपने कमेंट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप प्लीज बीच में, या अगर आप चाहें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और हम उनको लास्ट में ले सकते हैं। इस सेशन को मैं चाहूंगी कि आप इंटरैक्टिव रखिएगा। कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक चीज जो बहुत टाइम से हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमने जानी है, दैट इज कि जब हम एक डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा सीखते हैं। Absolutely, absolutely. तो सभी साथियों को पूरा इनविटेशन है कि आप बीच में या बाद में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। बिल्कुल आ रही। सो दिस इज द बुक। ये जो बुक है द करेज टू टीच, पाकर जे पाल्मर ने लिखी है। फर्स्ट एडिशन इस बुक का 1998 में पब्लिश हुआ था। Parker J. Palmer, he is a highly respected writer, educator, and activist based in the United States. ज्यादातर इन्होंने काम एजुकेशन के फील्ड में किया है। ये खुद भी एक टीचर थे और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने क्लासरूम के अंदर देखा, ऑब्जर्व करा, उसके बेसिस पर उन्होंने ये किताब लिखी है। And it took him more than 10 years to complete this book, क्योंकि वो जब भी एक ड्राफ्ट की तरफ चलते थे कि ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, एंड थोड़े टाइम के अंदर उनको कुछ और एक्सपीरियंस होता था, और फिर वो वापस रिविजिट करते थे अपने रिटन स्क्रिप्चर्स को और उसको फिर से चेंज करते थे। तो काफी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व करके स्टूडेंट्स के साथ बातचीत जो हुई उसको मिलाकर उन्होंने ये बुक जो है इस शेप के अंदर लाए हैं। एंड दिस बुक सिंस 1998 जब ये पहली बार पब्लिश हुई, उससे लेकर अब तक ये जो किताब मेरे पास अभी है, दिस इज द 20th एनिवर्सरी एडिशन। तो अगर हम एक ऐसी किताब देख रहे हैं जिस किताब ने जो टाइम का टेस्ट है, दिस बुक हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम ओवर ऑल years. Many people who have read this book, who have reviewed it,
they found it useful. तो जब हम किसी एक ऐसी किताब को देखते हैं या मौका मिलता है हमें उसको पढ़ने का, बिकॉज इतने सालों के अंदर जो चीज 1998 के अंदर ट्रू थी, वही चीज आप 2021 में उसको ट्रू पा रहे हो, एप्लीकेबल पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि कितनी डेप्थ और कितना रिसर्च ह्यूमन कनेक्शन में और ह्यूमन कॉन्वर्सेशन में, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट द सेम, Absolutely. नथिंग हैज चेंज्ड। और हम Right. ये कहते हैं कि सिंस मतलब 90s से अब जब हम 2021 में आए हैं तो हमने बहुत एडवांसमेंट्स कर ली हैं, लेकिन कहाँ की हैं एडवांसमेंट्स? ये तो वही बातें हैं, इट्स द सेम। और नीरू मैम, आपको मतलब जानकर ये हैरानी होगा कि हम लोगों ने जो बाकी किताबें भी पढ़ी है, कुछ किताबें तो लाइक 100 साल पहले लिखी गई है, और उन किताबों में भी जिस तरीके के बातों का जिक्र है, चाहे हम तोतो चान पढ़ रहे थे या बाकी किताबें भी जो हमने पढ़ी है, तो लाइक वी वर फाइंडिंग इट सच अ सिमिलर सिचुएशन व्हिच वी आर इन। तो जो राइटर्स हैं वो शायद बहुत आगे तक चीजों को देख पाते हैं, उसको एनालाइज और कर पाते हैं। और जब आप इस किताब के बारे में बता रहे हैं और आप अभी यूएस में हैं भी, तो मैं चाहूंगा कि जो रिलेवेंट लोग हैं उनके बीच अगर आप एक बात पहुंचा पाए, उन्हें कहिए कि देखिए तुम्हारी किताबों को इंडिया में भी लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्राइस कम किया करो, बहुत प्राइस रखते हैं ये, एंड फॉर लाइक डॉलर्स में उन्हें लगता है कि थोड़ा ही होगा, लेकिन हम लोगों के लिए इट बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और बहुत गार्डेड भी रखते हैं। हमारे यहाँ के जो राइटर्स होते हैं वो ठीक है ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, ये बहुत गार्डेड रखते हैं, ऐसे वैसे कहीं अवेलेबल नहीं रहता है ऑनलाइन इनकी किताबें। राइट। तो वर्जन्स अवेलेबल नहीं होते, सारे पेड वर्जन्स होते हैं, और उसमें भी पेड वर्जन्स में भी बहुत डिफिकल्टी होती है लेने के लिए और उसके लिए। तो एब्सोल्युटली, तो दे माइट बी नॉट अवेयर कि इंडिया में भी इनको लोग पढ़ते हैं, बट नाउ दे कैन बी अवेयर कि इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं और इंडिया में भी लोग उनको पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बता रहे जी। वैसे तो इस बुक के बहुत रिव्यूज और बहुत सारी बातें इसके बारे में इंटरनेट में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एक या दो क्रिटिकल एक्लेम्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने एक रिव्यू इस बुक के बारे में लिखा। इफ टीचिंग इज जस्ट अ कोर and you are content to do just course, this book is not for you. You will be challenged to go beyond the minimum and pursue excellence. But rather than approaching teaching as something we just tolerate, Parker Palmer holds out the promise of it by being something we can tolerate. Parker Palmer holds out the promise of it being something we can celebrate. तो जब हम टीचिंग को या टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को सिर्फ काम नहीं, काम से कुछ ज्यादा, और कुछ एक ऐसी चीज जिसको कि हम टॉलरेट ना करें और सेलिब्रेट करें, ये आइडिया मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि टीचिंग को जब हमने एक प्रोफेशन के तौर पर लिया, इनिशियल ईयर्स के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने इसको अपना एक काम समझा, बट ओवर द इयर्स वो कब मेरे को काम से कुछ ज्यादा बन गया, इसका रियलाइजेशन मुझे ये पढ़ के लगा। इट वॉज नॉट दैट कि जब मैं अपने लेसन्स को प्लान करती थी या अपने फेलो टीचर्स के साथ बात करती थी और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं था कि सब लोग अपने टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को एक काम के जैसे मान रहे थे। वो किसी तरीके से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना चाह रहे थे कि टीचिंग जो हम कर रहे हैं वो बच्चों के लिए किस तरीके से यूजफुल हो, किस तरीके से जो लर्निंग्स हैं वो उनके साथ रहें।
How does a teacher prepare students for life? And that thing goes beyond the content that is to be transacted. कंटेंट जो हम ट्रांजैक्ट करते हैं, जो भी हमारा करिकुलम होता है, उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज बेशक हों जो कि एम करते हैं कि स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा टीचर्स करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हों और जिन सिचुएशंस में वो फेमिलियर नहीं होते उनका भी सामना कर पाए। कौन सी बात होती है जो कि टॉलरेट और सेलिब्रेट, ये दो चीजों के टॉलरेट से सेलिब्रेट तक ले जाती है। जब आपका पर्सपेक्टिव इस तरीके से सोचने लगता है, जब आप अपना व्यू पॉइंट को चेंज करके वहां ले जाते हैं दैट ये सिर्फ काम नहीं है मेरा, ये काम से बहुत ज्यादा है, देन आई थिंक कि आप उस लेवल पे कनेक्शन के लेवल तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। एब्सोल्युटली। आई थिंक जब आपने कहा कि लाइक आपने मतलब एक तरीके से एक्नॉलेज किया कि शुरुआत में आपको भी नहीं पता था या शायद आप भी इसको काम के जैसे ले रहे हैं, तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो एक ऐसे ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं जिनके लिए टीचिंग इज लाइक अ वेरी इजी जॉब या उनको हमेशा सफलता ही मिली, तो ये कहते हैं कि उन टीचर्स के लिए मैंने ये किताब नहीं लिखी है। दिस बुक इज फॉर द टीचर्स हु हैव good days, bad and bad days. Yes. So like for the most of us who are there, who have the celebrations also, और जो word आप use कर रही हैं, जो tolerate भी कर रहे हैं, जो celebrate भी कर रहे हैं, जिनको disappointment भी मिलती है, so like all ordinary teachers are like that only. Yes. Just to add one thing here, यहाँ मतलब एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि teaching like any truly human activity emerges from one's inwardness for better or worse. As I teach, I project the condition of my soul onto my students, my subject, and our way of being together. तो ये जो togetherness वाली जो feeling है कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ one way या monotonous होके रह जाएगा. When you interact with your student on multiple levels, only then such kind of connection will develop. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी नीरू मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। एक और है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये टीचर मैगजीन ने लिखा है इस बुक के बारे में। दिस इज द बेस्ट एजुकेशन बुक आई हैव रेड इन अ लॉन्ग टाइम। Parmar provides a powerful argument for the need to move from our over-reliance on technique towards a learning environment that both honors and truly develops the deepest human capacities in children and teachers. It's about time we remember that it's the person within the teacher that matters most in education. हम कितना भी टेक्निक्स, कितना भी स्ट्रैटेजीज का यूज कर लें, अच्छी से अच्छी टेक्निक और एड्स प्रोवाइडेड हों क्लासरूम के अंदर, लेकिन जब तक वो जो पर्सन है द विद इन टीचर, वो पर्सन जब तक नहीं जुड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के साथ में, तब तक वो तमाम स्ट्रेटजीज, वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम टेक्नोलॉजिकल एड्स टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। Absolutely, it's a beautiful line. And I remember, शायद आप मिस कर गई होंगी, जो हम लोगों का लास्ट कन्वर्सेशन था उसमें इस बात पे बहुत फोकस था जब हम कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे थे। Yes. वो तो एक तरीके से टेक्निक्स को एकदम मतलब दरकिनार कर देते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो भी इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब इट्स जस्ट पामर को हम एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हैं उसी आइडियाज को जो हम कृष्णमूर्ति के जरिए पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। एंड इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब आप ये पढ़ रहे थे, आई जस्ट रिमेम्बर कि वो जो पर्सन है विद इन ए टीचर, चूंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए अगेन आई थिंक जो तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो तो काम करता ही है, बट रीडिंग बुक, बिकॉज दिस गिव्स अस अ टूल टू रिफ्लेक्ट, वो हमारे लिए टूल है जिसे हम रिलेट करके देख पाते हैं अपनी ही चीजों को। मतलब एक तरीके से वो मिरर है, मिरर के बारे में ये भी बात करते हैं अपनी किताब में भी। सो दैट इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो जिसके जरिए हम
person within the teacher को develop कर पाएंगे शायद, isn't? Yes. जी. So moving forward, किताब की अगर मैं कुछ लाइनें आपके साथ में शेयर करूं, this is from the introduction. This book is for teachers, जैसा कि भी आपने कहा था. This book is for teachers who have good days and bad. कभी भी अगर हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस के बारे में सोचें और रिफ्लेक्ट बैक करें, तो सारे, चाहे हम सेम कंटेंट पढ़ा रहे हों, सेम क्लास में पढ़ा रहे हों, और हो सकता है विद इन द सेम एकेडमिक ईयर हो, लेकिन हर एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एक क्लास से दूसरी क्लास में डिफरेंट होती है. एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. कोई लेसन किसी एक क्लास के अंदर बहुत शानदार भी जा सकता है और दूसरी क्लास में बिल्कुल फ्लॉप हो सकता है. So the book talks about the good and bad experiences of the teachers. The bad days that bring suffering, that comes only from something one loves. और ये वाली बात मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, and I'm very sure कि सभी टीचर्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई लेसन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जाता तो हमें कितना दुख होता है. चाहे हम उसे शील्ड करें किसी एक पर्टिकुलर एक कुछ सोचें कि भी इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन वो जो दुख होता है हमारे मन के अंदर कि ये जो मैंने प्लान करा था उस हिसाब से क्यों नहीं गया, और किस तरीके से मैं इससे कोई स्ट्रैटेजी चेंज करूं, कोई अप्रोच चेंज करूं, किस तरीके से कोई नया एलिमेंट डालूं कि ये डिजायर्ड आउटकम दे. जब हम इन लाइंस पे सोचने लगते हैं तो दैट इज कि वो हमारे को इम्पैक्ट किया है कि हमारा लेसन क्यों नहीं उस हिसाब से गया जैसा कि मैंने सोचा था. आगे की लाइंस इंट्रोडक्शन से, इट इज फॉर टीचर्स हु रिफ्यूज टू हार्डन देयर हार्ट्स बिकॉज दे लव लर्नर्स, लर्निंग एंड द टीचिंग लाइफ. ये जो बातें इस लाइन के अंदर हैं, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि जब तक टीचर्स अपने हार्ट्स को ओपन रखते हैं, अडेप्ट देमसेल्व्स टू द करंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, टू द करंट नीड्स ऑफ द लर्नर्स, तब वो लर्नर्स तक पहुंच पाएंगे. अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर टीचर्स ये सोच लें कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, आई डोंट केयर, अगर ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिजायर्ड आउटकम्स या डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचना. आई थिंक इसके जरिए वो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पाएंगे रादर देन टीचर टू स्टूडेंट कनेक्ट. उसमें डिफिकल्टी होगी. एंड जब आप पहला वाला वो पढ़ रही थी, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप कह रही थी कि ईच क्लासरूम या एक ही क्लासरूम में जब हम दोबारा जा रहे हैं, इट्स अ यूनिक कॉन्टेक्स्ट, है ना. भले ही एक ही क्लासरूम है, लेकिन अगर हम शायद एक ही दिन में दोबारा जा रहे हैं, ईच टाइम इट्स अ यूनिक कॉन्टेक्स्ट. एंड आई थिंक कहीं प्लीज आप में से किसी की आवाज आ रही है, एक बार म्यूट कर लीजिए. ओके, गिव मी अ सेकेंड. वेल, हाँ हो गया शायद. या तो आई वाज रिमेम्बरिंग एंड आई ऑफन टॉक अबाउट दिस कि ये जो यूनिकनेस है कॉन्टेक्स्ट का, that makes this profession beautiful and that defines us as professionals, right? And the professionals, what by professional I mean is that professionals have to bring unique solutions to the unique problems, in different contexts. तो ये एक मतलब आपने चूंकि इस कॉन्टेक्स्ट की बात की जो हमें अलग करता है टेक्नीशियन से. अब टेक्नीशियन से यह मतलब होगा कि किसी को अगर बल्ब सेट करना आता है तो वो कहीं भी जाएगा बल्ब सेट करने, राइट, लेकिन उसके मेथड्स सिमिलर होंगे. लेकिन जो प्रोफेशनल्स होता है उसको हर यूनिक कॉन्टेक्स्ट में सोचना होगा, राइट, क्योंकि अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसे यूनिक सॉल्यूशंस लेकर के आना होगा. And this is the reason that
why our professional identity matters a lot, because I mean, and why thinking matters a lot, because unique solution बिना systematic और contemplative thinking के आएगा नहीं, है ना? तो why I'm telling all these things, because there is an effort कि आप टीचर को टेक्निक सिखा दो, but that can't solve the problem. ये जो यूनिक कॉन्टेक्स्ट है वो प्रोफेशनल्स की जरूरत को रीस्टैब्लिश करता है, और प्रोफेशनल्स के रूप में हमें लगातार ग्रो करते रहने के लिए यही लगातार पढ़ते रहना होगा, या लगातार ऐसे कॉन्टेक्स्ट के साथ इंगेज होता रहना पड़ेगा जिसमें हम लगातार सोचते रहते हैं। जी जी न्यू मैम, नेक्स्ट आप। आगे चलते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, this is not one of my favorite genres. Okay. So I am a reader of fiction. मुझे romantic fiction, historical fiction, adventure वाली books, you know, ये बहुत पसंद है। And I can just ऐसे चुटकी बजाते ही I can just take on that book and एक बार पीछे you know देखा, उसका कवर पेज पे देखा, समरी देखी, and you know I'll get on with it. But जो इस genre की किताबें होती हैं वो थोड़ा सा, because it is heavy, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, आपको रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर करती हैं। ये मेरा बहुत फेवर्ड वाला नहीं है। I have read some books and I you know occasionally do, जो भी किताबें you know आती हैं, I come across, I do read them. अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, द टेस्ट, जो कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है या असेसमेंट प्रोसीजर्स है, उसको बहुत डिस्क्राइब करती है। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मैं काफी ना इनसे बचती हूँ, इन किताबों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत हेवीली इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर। सो जब हम यहाँ आए एट इंडियाना यूनिवर्सिटी, जो पहला हमारा फुल ब्राइट सेमिनार था, उसमें ये किताब हम सबको दी गई। बहुत खुश थे हम कि भी फुल ब्राइट सेमिनार में हम अटेंड कर रहे हैं, अलग अलग, इट वाज एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, और ऐसा लग रहा था कि अलग अलग देशों के लोग हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, एंड हाउ डू यू नो पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग्स। एंड एक बुक है जो हमें सबको एक कॉमन एलिमेंट के तौर पर दी गई है कि इसको पढ़ना है, राइट, और इसके ऊपर फिर डिस्कशन करना है, और एक टाइमलाइन है। सो शुरू में तो बहुत मजा आया, फोटो खिंचवाई किताब के साथ ऐसे पढ़ के। I have shared the books also. Right. Photograph with the book on Facebook also. So, and then it hit. अब फोटो तो हो गई, मजा भी हो गया, अब इसको पढ़ना है। सो जब पढ़ना स्टार्ट करा और बहुत सारे एक्टिविटीज में एंगेज्ड भी थी मैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो आपको करने पड़ रहे हैं, नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं, बट यू हैव टू अटेंड द क्लासेस लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, और आपको सारे असाइनमेंट्स, सारे सबमिशंस, सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। मेरा एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि मुझे करना था। देन देयर वाज द को टीचिंग इन स्कूल्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स थी। तो मतलब वो टू मच था काम यहाँ पर, और उसमें एक काम था ये किताब पढ़ना। सो जब पढ़ना स्टार्ट करा, बहुत अनमने मन से मैंने करा, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन टू मेनी थिंग्स। लेकिन जब इसमें स्टार्ट किया तो जो बात मेरे को, मेरा हुक थी इस किताब के साथ में, वो ये दोनों चीजें थी। These were my hooks, that in spite of the busy schedule, in spite of too many things going on, and you know जब आप अपने फैमिली से, कंट्री से दूर होते हैं, तो एक अलग तरीके का आपका सोचने का ढंग बन जाता है। और बार बार ऐसा हो रहा था कि जैसे ही थोड़ा सा भी टाइम मिले,
मैं कैसे वापस मतलब इंडिया में किसी से बात करूं. सो आई हैव बीन इन टच विद माय फैमिली. ये तो रोज की बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स से बात करना, कॉलीग से बात करना, इन सब चीजों में मुझे लगता था कि मेरा टाइम ज्यादा डिवोट होना चाहिए टू स्टे कनेक्टेड विद माय रूट्स. और उसके अंदर ये किताब जब आई तो द टीचर विद इन सबसे बड़ा हुक था मेरा, कि ये किताब बात कर रही है उस टीचर की जो मेरे अंदर है. एंड दैट वाज माय कनेक्शन विद द बुक. और जो यूनिक सब्जेक्टिविटी जिसकी हमने अभी बात की है, कि जब मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू रीड एंड दिस इज समथिंग दैट आई शुड रिफ्लेक्ट अपॉन. और जब ये दोनों चीज को मैंने पीछे मुड़कर देखा कि टीचर विद इन का जो प्रोग्रेशन था, या जो मेरे टीचर विद इन की जो जर्नी रही इन 24 सालों के अंदर, वो कैसी थी. When did I start? How did I develop as a teacher? And what were the things that led कि आज यहां पर मैं इस किताब को पढ़ रही हूं और उसको पैरेलल ड्रॉ कर रही हूं अपने साथ में. right. कौन सी बातें थी. और जब हम यूनिक सब्जेक्टिविटी की बात देखते हैं तो बार बार वही ख्याल आता था कि आई वॉज टीचिंग 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 11. और एक ही लेसन को जब अलग अलग क्लासेस में मैं पढ़ा रही थी तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था, और उस रिस्पॉन्स के साथ साथ मेरा रिस्पॉन्स कैसा था. तो इट इज नॉट दैट कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स ही अलग था. आई एज अ टीचर, मेरा उस टॉपिक को डील करने का तरीका भी अलग था. कॉमर्स वाले सेक्शन में मैं अलग तरीके से पढ़ाती थी. आर्ट्स वाले सेक्शन में मेरा तरीका पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था. सो ये जो हम यूनिक सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, Right. इट्स फॉर द टीचर्स ऑल्सो. For the teachers also. Right. और उसके बाद में ये 2 लाइनें मेरा हुक थी इस किताब के लिए. पहली है, whoever our students may be, whatever the subject we teach, ultimately we teach who we are. और मैंने इस बात को बहुत ट्रू माना और ट्रू पाया कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हम पढ़ाते वही हैं जो कि हम खुद हैं. Absolutely. एंड द सेकंड लाइन, ये उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है जबकि पाकर पामर ने अपने स्टूडेंट्स से पूछा था कि हु वर योर फेवरेट टीचर्स. उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब स्टूडेंट्स ने डिस्क्राइब करा तो पाकर पामर ये कहते हैं कि इन एवरी स्टोरी आई हैव हर्ड, good teachers share one trait. A strong sense of personal identity infuses their work. जब तक टीचर अपना ट्रू बीइंग जो वो खुद हैं, जब तक वो अपनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस के साथ शामिल नहीं कर पाएगा, तब तक जो एक्चुअल आउटकम्स हैं या जिस लेवल पर टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग को पहुंचाना चाह रहा है वो नहीं पहुंच पाएंगे. सो इट हैज टू बी द ट्रू आइडेंटिटी, बिना किसी शील्ड के, बिना किसी एक मुखौटे के. मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगी कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम अपने अलग अलग फेसेस सामने लाते हैं. कहीं पर हम बिल्कुल एक शील्ड के पीछे छुपे हुए होते हैं, ट्राई टू बीइंग समबडी जो कि हम नहीं हैं. But this thing is not going to help when you are teaching in the classroom. The only thing that can help when you're teaching in the classroom is being the true self that you are. क्योंकि वो कनेक्शन तभी फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा.
सो ये मेरे Absolutely. हुक्स थे, हाँ, क्योंकि मैं इस किताब के साथ में बस जुड़ गई और आगे चलती चली गई। आपने बहुत ऑनेस्टली इसको शेयर किया है। इट्स रियली टफ। मैं इसको लेकर के मतलब अवेयर हूँ, खास करके जो एजुकेशनल लिटरेचर की किताबें होती हैं, देयर इज नॉट मेनी रीडर्स, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। इट्स रियली टफ एंड हेवी टू रीड। और खास करके जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको पढ़ा वो और यूनिक है, इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने इसको पढ़ा है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें और भी कुछ आप शेयर करना चाह रही हैं या हम लोग अब या अब हम बुक पे आ सकते ओके हैं। यस, ओके आई विल स्टॉप शेयर। यस, ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आपने एक बहुत यूनिक तरीके से किताब का जो जिस्ट है बेसिकली कि व्हाट द बुक्स ट्राई टू टेल टू द पीपल, उसको हम सबके सामने रख दिया है। एंड एक थोड़ा अलग भी रहा, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनली बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक ऐड हो गया कि नाउ द पीपल हु आर हियर और दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, दे आर अवेयर ऑफ दैट व्हाट द बुक इज अबाउट। अब जो हमारा सेक्शन है, इट्स अबाउट द जॉय ऑफ रीडिंग, कि कुछ पैराग्राफ पढ़ा और बहुत right? तो आई थिंक वो कोई पैराग्राफ अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो, मैंने भी किया है, आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं भी पढ़ूंगा। दैट जो Yes, पढ़ के sure. लगता है कि अरे ये पढ़ के मजा आ गया। हाँ, Sure. Yes. So एक जो सेक्शन इस बुक का, एक पोर्शन जो मुझे अच्छा लगा था, that is from the introduction. देखो And it is the question we most commonly ask is the what question. What subjects we teach. When the conversation goes a bit deeper, we ask the how question. What methods and techniques are required to teach well? Occasionally, when it goes deeper still, we ask the why question. For what purpose and to what ends do we teach? But seldom, if ever, do we ask the who question. Who is the self that teaches? How does the quality of my selfhood form or deform the way I relate to my students, my subject, my colleagues, my world? How can educational institutions sustain and deepen the selfhood from which good teaching comes? तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि हम अधिकतर बातें कर लेते हैं व्हाट पे, क्या कंटेंट पढ़ाना है, थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों पढ़ाना है, कर लेते हैं कैसे पढ़ाना है, लेकिन किसको पढ़ाना है? अब ये किसको में टीचर आ जाता है, किसको में स्टूडेंट भी आ जाता है। जब तक वो सेल्फहुड जो है, जब तक वो जो इंडिविजुअलिज्म है टीचर का, जब तक हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो चाहे कंटेंट सेम हो, चाहे टेक्निक सेम हो, चाहे उसका रिजल्ट अलग आएगा, हर बार अलग आएगा। वो रिजल्ट एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो सेल्फ है, जो सेल्फहुड है टीचर का, वो डिफरेंट है। इट इज नॉट द सेम। इट इज नॉट कोई एक मशीन का एक पोर्शन हम वो फिक्स नहीं कर रहे हैं कि पेज कसा तो एक ही तरीके से कसा गया। इट इज डिफरेंट, इट इज यूनिक। ये मुझे बहुत आई रिमेम्बर मोटिवेटिंग लगा था। हाँ, एक दूसरे किताब के कॉन्टेक्स्ट से, इनफैक्ट वो हमारा पहला ही किताब था जब हम लोगों ने मैंने और चंदन ने पढ़ा था, एक स्कूल मैनेजर की डायरी। तो उस किताब में इस बात पे बहुत फोकस किया गया है, चिल्ड्रंस आइडेंटिटी पे, कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लाइफ्स के क्या स्ट्रगल है। तो इतना डिटेल एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की गई है उस किताब में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड।
स्कूल मैनेजर की डायरी, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसको पढ़ सकते हैं, और हिंदी में ही अवेलेबल है किताब, जो इस बात पे बहुत फोकस करता है बेसिकली कि हु द लर्नर्स आर। एंड आप जब ये भी कह रही हैं आप, विच इज अ सेंट्रल क्वेश्चन शुड बी हु द टीचर्स आर, मुझे लगता है कि हम लोग जिस प्रोग्राम का हिस्सा है, मेंटर टीचर प्रोग्राम, उसमें ये मौका बहुत मिलता है हु द टीचर्स आर, इस पे रिफ्लेक्ट करने का, उस पे काम करने का, जो कई तरह के वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करने का हम लोगों को मौका मिलता है। समवेयर आई फील वेरी स्ट्रांगली कि वो सब हमारे हु को बहुत शेप करता है, इजंट? यस। और लगता है कि मतलब ये वो शायद एक बहुत यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि हम इस तरीके से अगर हु को शेप कर देंगे, वंस दे आर बैक इनटू द सिस्टम, यू नो, दे विल ऑपरेट ऑन इट्स ओन। और उस पे काफी शायद उस पे फोकस रहता है। आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ता हूँ अब, कि वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ टीचिंग इज the chance it gives us for continuing encounters with the young. But whatever eventually blesses us may at first feel like a curse. We are more likely to survive the curse and arrive at the blessing if we understand that we may be as afraid of our students as they are of us, and then learn to decode our own fears as well as theirs for the sake of creativity in the service of the young. The personal fears that students and teachers bring to the classroom are fed by the fact that the roots of education are sunk deep in fearful ground. The ground I have in mind is one we rarely name. It is our dominant mode of knowing, a mode promoted with such arrogance that it is hard to see the fear behind it until one remembers that arrogance often masks fear. A mode of knowing arises from the way we answer two questions at the heart of the educational mission. How do we know what we know? And by what warrant can we call our knowledge true? Our answers may be largely tacit, even unconscious, but they are continually communicated in the way we teach and learn. So I found this very interesting, page number 50-51 पे ये वाला पैराग्राफ था जो मैंने अब पढ़ा है, कि एक फियर, ये कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं होता कि टीचर से डर रहे हैं, टीचर भी डरे हुए रहते हैं, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम क्वेश्चंस पे क्यों इतना कंट्रोल रखते हैं कि ये नहीं पूछना है, वो नहीं पूछना है, ये सिलेबस की बाहर की बात है, ये वाली बात यहाँ पे क्यों ले आया। और क्योंकि जो ये आगे आई मीन जो आगे इस बारे में वो बता रहे हैं कि दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम कि हम कभी सवाल नहीं करते हैं कि जो हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, है ना, और द गिवन थिंग्स को हम मान के चलते हैं, राइट? और द मोमेंट वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, उसमें कई सारी चीजें जो हम भी जानते रहते हैं वो भी सवालों के दायरे में आ जाएगा कि ठीक है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता है, या ये जो मैं आज जानता हूँ वो कल बदल सकता है। और ये सारी चीजें एक टीचर को क्लास में एकदम शेकी ग्राउंड पे रख देगा। और इन द बिगनिंग ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट कहे कि यार मतलब आपको तो खुद नहीं श्योरिटी है कि आप क्या बता रहे हो। इट हैपेंस, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। बच्चे पूछते हैं कि आप खुद मतलब श्योर होके नहीं बताते हो, फिर हम याद कैसे करेंगे, फिर हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। हमारा तो पूरा डेफिनेटिव सेंस में कल्चर चलता रहता है कि एकदम ठीक ठीक बता दो कि क्या लिखना है, राइट? बट द होल आइडिया ऑफ द नॉलेज फॉर्मेशन इज इन this new sense where we don't know exactly, and if we are able to talk about this, we don't know, let's discover it. That will perhaps bring a lot of change, और perhaps यही उस fear को बच्चे से भी बाहर निकालेगा और टीचर से, isn't? Yes. तो नेक्स्ट आपने कौन सा पैराग्राफ आइडेंटिफाई किया हुआ है? आई थिंक हम लास्ट पैराग्राफ ही ले पाएंगे, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स टाइम। तो जो आपने तो आपने जो बेस्ट मतलब जो लगता है आपको कि इसको पढ़े बिना तो मैं छोड़ नहीं सकती इस प्रोग्राम को, वो वाला पैराग्राफ आप पढ़िए। ओके ओके। चंदन जी आप कहाँ हैं? लास्ट वन देन। यस,
It is from page number 76, 77, Mhm. Paradox and Pedagogical Design. Mm. The author says, Mm. when I design a classroom session, Mm. I'm aware of 6 paradoxical tensions that Mm. I want to build into the teaching and learning space. Right. 6 are neither prescriptive nor exhaustive. Mm. They are simply mine, offered to illustrate how the principle of paradox might contribute to pedagogical design. Mm. First, Mm. the space should be bounded and open. Mm. Second, Mm. the space should be hospitable and charged. Mm. Third, Mm. the space should invite the voice of the individual and the voice of the group. Mm. Fourth, Mm. the space should honor the little stories of the students and the big stories of the disciplines and tradition. Mm. Fifth, the space should support solitude and surround it with the resources of community. Mm. Sixth, the space should welcome both silence and speech. Mm. तो ये किताब पढ़ते हुए लगा मुझे Mm. कि आज भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जैसे मैंने ये बुक में पढ़ रही थी तो आई वाज ड्राइंग पैरेलल्स विद माय ओन टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. तो ये जो 6 इन्होंने अपने लर्निंग स्पेस के डिजाइन्स की बात की है और उसके अंदर क्या क्या चीज उनको लगता है कि क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए टू सपोर्ट लर्निंग, वो चीज आज हम सब इन्हीं बातों के ऊपर ही स्ट्रगल कर रहे हैं. एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट्स के लिए जो कि रूल्स भी फॉलो करे, साथ ही ओपन भी हो, जो कि साइलेंस को भी सपोर्ट करे और स्पीच को भी इनवाइट करे. अच्छा, तो इसीलिए इन्होंने इन सबको पैराडॉक्स बोला है. दिस इज व्हाई ही इज यूजिंग द वर्ड पैराडॉक्स. यस यस. राइट. तो हम इन्हीं चीजों के ऊपर आज भी फोकस कर रहे हैं जो कि 1998 के अंदर वो कर रहे थे. सो सम थिंग्स आर, और मुझे इसके बाद में लगा कि जो वो कहते हैं ना कि कोई चीजें होती हैं जो समय के साथ नहीं बदलती और एक सी रहती हैं, वो ये बुक है. राइट. ये बदली नहीं है. इट इज द सेम. That's beautiful. And particularly मुझे लगता है जो 6 paradox की आपने बात की, that you know captures the essence. उसी को greater detail में मुझे लगता है कि लिखा गया है, right? हाँ जी. हाँ, एक पैराग्राफ मैं भी चलते चलते पढ़ लेना चाहता हूँ. Sure. हाँ, और बेसिकली ये लास्ट वाले हिस्से से है जहाँ पे ये लिखते हैं कि आई एम ए टीचर एट हार्ट एंड आई एम नॉट नेचुरली ड्रॉन टू द रफ एंड टम्बल ऑफ सोशल चेंज. I would sooner teach than spend my energies helping a movement along and taking the hits that come with it. Yet, if I care about teaching, I must care not only for my students and my subject, but also for the conditions, inner and outer, that bear on the work teachers do. Finding a place in the movement for educational reform is one way to exercise that larger care. The 4 stages of a movement may help us find that place. Some of us may decide to live divided no more, to align our actions as teachers with the meaning we attach to our work. Some of us may seek others who share our value, joining communities of congruence that can sustain our transformation. Some of us may go public with our beliefs, voicing our vision and being challenged by the response. Some of us may learn that conventional rewards fail as we experience the satisfaction of living by our best lives. So this I found extremely beautiful, and I particularly repeat this line कि
I would sooner teach than spend my energy helping a movement along and taking the hits that come with it. उसके बाद जब ये लिखते हैं कि एक तो सेट है ऐसे टीचर्स का जो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं. But when he writes further, yet if I care about teaching, I must care not only for my students and my subject, but also for the conditions, inner and outer, that bear on the work teachers do. तो आई फाउंड इट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कि कैसे जो इनर कंडीशन है और जो आउटर कंडीशन है जिसके अंदर हम सब ऑपरेट करते हैं. सो एक क्लासरूम में जब हम पढ़ाते रहते हैं तो दैट इज नॉट द आइसोलेटेड वर्क. इट हैज लॉट टू डू विथ व्हाट इज गोइंग अराउंड. और जब ये कहते हैं कि उसमें हम पार्टिसिपेट करके कई सारी चीजों को इंश्योर कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे भी जो हम अभी 40-50 लोग एक साथ हैं या जो भी इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, सो वी आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु केयर्स फॉर द इनर एंड द आउटर वर्ल्ड दैट शेप्स द टीचिंग लर्निंग इन आवर क्लासरूम्स. सो आई थिंक Chandan ji, we are still waiting to hear from you if you are in a situation, if the internet is supporting, and then we'll definitely. Yeah. So as you can see, I have little Chandan with me as well. Yeah, that's wonderful. Welcome to Read with a Teacher, little Chandan. So I would like to read, this particular segment, holding the tension of opposites. क्योंकि अभी मैंने देखा कि paradox की बात हो रही थी, and here, the author is saying holding the tension of paradox so that our students can learn at deeper levels is among the most difficult demands of good teaching. How are we supposed to do it? Imagine yourself in a classroom. You ask a well-framed question, and then you wait and wait as the great silent descends. So, that's the thing, like, which challenge any teacher at the core level, actually. That I ask the question and I seek some responses from our audience or the student, but as the time passes and nobody speaks, then I think, like, what did I ask wrong? So that's the challenge, actually. So he actually giving the teacher that responsibility and accountability, that think through it and see how things are going in your classroom rather than looking for an ideal situation at all. So right. This is fantastic. So I think Neeru ma'am, एक बार अगर आप जो हम लोगों ने अभी 1 घंटे में पढ़ा, डिस्कस किया, उसको 2-3 लाइन में रिकैप्सुलेट कर देना चाहें, and then we'll end this program here. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोनिका को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने चैट में जो 6 अभी मैंने पैराडॉक्सेस पढ़े थे उसको लिख दिया है उन्होंने. लिख दिया है. अरे वाह. दैट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक बार उसको देख लें. एंड दिस बुक के ऊपर जो भी डिस्कशन हमने की है, इट इज मोर अबाउट दैट द टीचर जैसे हम हैं as an individual, we should be true in the classroom situation also. Right. क्योंकि जब तक हम अपना ट्रू बीइंग क्लासरूम के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, तब तक उतना आउटकम हमें स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कनेक्शन वो मिसिंग होगा. Right. एंड द टीचर विद इन ज्यादा इम्पैक्ट करता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को. टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजिकल एड्स, सारे आउटर जितनी भी चीजें हैं उनका अपना अपना असर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस टीचर का होता है जो कि क्लासरूम के अंदर होता है. और हर एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन यूनिक होती है. हर एक टीचर यूनिक है, हर एक स्टूडेंट यूनिक है. जब हम स्टूडेंट्स की यूनिकनेस की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल स्टूडेंट तक पहुंचने की बात करते हैं, उसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल टीचर तक भी पहुंचने का सोचना है. Absolutely. क्योंकि वन डिजाइन, एक ही डिजाइन सबके लिए नहीं हो सकता. Absolutely. So beautifully you have summed it up. So as always happens, किसी भी 1 घंटे के प्रोग्राम में हम किताब के बारे में सब कुछ नहीं बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रह जाती है. और आई थिंक ऐसा ही होना भी चाहिए, so that people try to read it. So
It was really an interesting session. Neeru ma'am took out some time from Indiana University. Chandanji managed all this while traveling. So thanks a lot to everyone and all the friends who took out the time from their busy schedule and joined us So as teachers. in Yeah. the end, मैं बाहर दिखाना चाहूंगी एक हाँ, बार. that will be really great, really great. Yeah. Wow. वाह, ये अराउंड कितना 9:30 के आसपास मुरारी सर, टाइम मैम की स्क्रीन को वो कर दीजिए, फोकस यस यस यस, कैसे स्पॉटलाइट होगा? कर दीजिए, स्पॉटलाइट स्पॉट, स्पॉटलाइट. ओके 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 ओके, हाँ कर दिया. Okay, so this is friends, this is Indiana University's campus in the United States. Neeru ma'am is there and she is showing it. बहुत खूबसूरत, और सुबह के कितना 9:30 बजे के आसपास का 9:30 बज रहे हैं. राइट. और आज थैंक्स गिविंग डे है, इसलिए कंप्लीट छुट्टी जैसा लग रहा है बाहर, है ना? हाँ कहीं जी. कोई दिख नहीं रहा है. Perfect. It's beautiful, and this is also an invitation to all the teacher colleagues to aspire for and be there sometime in their life. Yeah. Hello, Neeru Murari ma'am. sir, I think we are on for like few minutes question answer session as well from the audience. Absolutely. But Okay. for that, I just stopped the live conversation. So thank you very much, everyone, for joining. Be here. We'll have few more minutes, so just be with us.